Assalamu alaikum and welcome to all the students of class first year. I hope you all are fine by the grace of Allah. This is our lecture number 2 and subject is English. Our today's topic is reading and translation of chapter 1.1 and the title of chapter 1.1 is His First Flight. Written by Liam O'Flaherty. So let's start our today's class. As you all know, it looks difficult to do something for the first time in life, but after some time, that becomes your habit. This is also a case here with the seabird. First of all, I read the text and then translate it, so listen it carefully. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to fly his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. So here in first paragraph, we are told about the environment. We are told about the young seagull who was all alone because nobody was around him. He was feeling some fear of flying. He tried to run towards edge of rock and move his wings, but he was feeling fear, so he could not do that. The young seagull was all alone on his ledge. Young seagull, छोटा नौजवान बगला, ledge, hilltop, अमूदी चट्टान. छोटा या फिर नौजवान बगला चट्टान के ऊपर अकेला था. His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले वहाँ से दूर उड़ चुके थे. He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से खौफज़दा था. Somehow, किसी न किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge. Brink means extreme edge, दहाना, किनारा. किसी न किसी तरह जब वो चट्टान के किनारे की तरफ थोड़ा आगे दौड़ा and attempted to flap his wings. Attempted means tried. Flap means movement of wings, परों का फड़फड़ाना. और अपने परों को फड़फड़ाने की कोशिश की. He became afraid. वो खौफज़दा हो गया. The great expanse of sea stretched down beneath. Expanse means area, हिस्सा. Stretched फैला हुआ था. नीचे समंदर का वसी हिस्सा फैला हुआ था, बहुत बड़ा हिस्सा फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. और ये इस कदर दूर नीचे था, मीलों नीचे. ही फेल्ट सर्टेन. सर्टेन मीन्स नोन फॉर श्योर, यकीनी था वो. दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और ये उसने यकीनी महसूस किया कि उसके पर कभी भी उसकी मदद नहीं करेंगे. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज. तो उसने अपने सर को झुकाया और नीचे चट्टान की तरफ उस छोटे सुराख में वापस भागा. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात सोया था. इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहाँ तक कि उसके दोनों भाई और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओन, जिनके पर उसके परों की निस्बत कहीं छोटे थे. रैन टू द ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, चट्टान की तरफ दौड़े, अपने परों को फड़फड़ाया और दूर उड़ गए. ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. मस्टर अप मीन्स गैदर, इकट्ठी करना. प्लंज मीन्स डाइव, जंप या फिर गोता लगाना.
ही फेल्ड ही फेल्ड, वो नाकाम हो गया वो हिम्मत जमा करने में कि वो गोता लगा सके। विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट, जो कि डेस्परेट मीन्स डेंजरस या फिर डिज़ायरस टू डू एनीथिंग, बेताब भी, लेकिन यहाँ पे डेंजरस के सेंस में, ठीक है, जो कि उससे बहुत मुश्किल महसूस हुई थी। इस फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मीन्स विद शॉर्प साउंड, तेज़ आवाज़ के साथ। उसके माँ और बाप उसकी तरफ आए तेज़ आवाज़ के साथ पुकारते हुए, अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स कॉल्डिंग हिम, मलामत करना, सरजनिश करना, उसे सरजनिश करते हुए, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, थ्रेटनिंग मीन्स डराना धमकाना, एंड स्टार्व मीन्स भूखा रहना। उसे सरजनिश करते हुए एंड थ्रेटनिंग टू लेट हिम, और उसे उस चट्टान के ऊपर भूखा रहने से डराते हुए, अनलेस ही फ्लू अवे, जहाँ तक कि वो दूर उड़ जाता, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी के लिए वो हरकत नहीं कर सका। दैट वॉज 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flying, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock, while his parents circled around, raising a proud cackle. And all morning, the whole family had walked about on the big plateau, midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice. Here we are told about the activities of previous day, how the three young seagulls practiced of flying all day and how their parents were proud of them. That was 24 hours ago. ये 24 घंटे पहले था. Since then nobody had come near him. तब से कोई भी उसके नज़दीक नहीं आया था. The day before, all day long, एक दिन पहले पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. उसने अपने पेरेंट्स को देखा था उसके भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए, perfecting them in the art of flight, उड़ने के फ़न में उनको माहिर बनाते हुए, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim means move quickly, तेज़ी के साथ हरकत करना, उनको सिखाते हुए कि कैसे लहरों के साथ तेज़ी से हरकत करनी है और कैसे मछली के लिए गोता लगाना है, डाइव, गोता लगाना. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. हकीकत में उसने अपने बड़े भाई को देखा था. कैच इज़ फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग इज़ अ सिल्वरी फिश, मछली होती है ये चांदी के रंग जैसी, ठीक है. एंड डिवोर मीन्स ईट हंग्रीली, शदीद भूख में कोई चीज़ खाना, जैसे नहीं कहा जाता अड़प करना, ये वो होता है, ठीक है. हकीकत में उसने अपने बड़े भाई को देखा था उसकी पहली मछली पकड़ते और उसे खाते हुए, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, चट्टान के ऊपर खड़े होते हुए, वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, जबकि उसके वलदैन उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे एक प्राउड कैकल लगाते हुए. प्राउड कैकल मीन्स एक फ़खरिया खिलखिलाट या फ़खरिया आवाज़, ठीक है, फ़खरिया आवाज़ उसके इर्द गिर्द लगाते हुए. एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट, और पूरी सुबह पूरी फैमिली चल रही थी अबाउट ऑन दी बिग प्लेटो. प्लेटो मीन्स रिलेटिवली फ्लैट हाईलैंड, दूसरी ज़मीन की निस्बत थोड़ी उभरी हुई सतह होती है ये ज़मीन की. पाक स्टडीज़ में जैसे आपने पढ़ा होगा सतह मुर्तफ़े, ये वो होती है, ठीक है, ज़मीन का थोड़ा उभरा हुआ हिस्सा. मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, मिडवे मीन्स दरमियान में, सेंटर में, एंड क्लिफ स्टीप रॉक, ये छोटी चोटी या छोटी पहाड़ी भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है. ढलवान चट्टान के लिए भी कहा जा सकता है, छोटी चोटी भी. और पूरी सुबह पूरी फैमिली एक बड़ी उभरी सतह के ऊपर चक्कर लगा रही थी, घूम फिर रही थी. मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, मुखालिफ चोटी के दरमियान में.
taunting him for his cowardice. Taunting him means मजाक उड़ाते हुए उसका. For his cowardice, उसकी बुज़दिली की वजह से मजाक उड़ाते हुए. The sun was now ascending the sky, blazing warmly on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. Then he had found a dried piece of mackerel's tail at the far end of his ledge. Now there was not a single scrap of food left. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he, his brothers, and sister had been hatched. He even gnawed at the dried pieces of spotted eggshell. It was like eating part of himself. He had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other, his grey body the colour of the cliff, his long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. But on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice, with the sea beneath, and between him and his parents there was a deep, wide chasm, and above him he could see nothing. The precipice was sheer, and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. So students, here you can feel the uneasiness of Seagull because the day was warm and he was hungry. Since last day he had not eaten anything. He searched for some food everywhere, even in dirt, in nest, on rocks, and he tried to reach to his parents, but there was a chasm between them. Chasm, chasm. Chasm means खाई, बड़ा शिगाफ, बहुत बड़ा जो खाली हिस्सा हो, खला हो, ठीक है. The sun was now ascending the sky. Ascending means climbing up, बुलंद होना. सूरज अब आसमान के ऊपर बुलंद हो रहा था. Blazing warmly on his ledge. Blazing means burning brightly, दहकना शिद्दत के साथ, ठीक है. उसकी चट्टान के ऊपर दहक रहा था, गर्माहट के साथ दहक रहा था. दैट फेस्ड द साउथ, जो कि जनूब की तरफ था. ही फेल्ट द हीट, उसने वो गर्मी महसूस की. बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया था. देन ही हैड फाउंड अ ड्राइड पीस ऑफ मैकरल टेल. मैकरल इज़ अ काइंड ऑफ फिश एंड मैकरल्स टेल मीन्स मछली की दुम. तब उसने मछली की दुम का एक खुश्क टुकड़ा पाया. एट द फार एंड ऑफ हिज लेज, उसकी चट्टान के एक दूर किनारे पे. नाउ देर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट, अब वहाँ खुराक का बचा हुआ एक टुकड़ा भी नहीं था. ही हैड सर्च्ड एवरी इंच, उसने एक एक इंच को तलाश किया. रूटिंग अमंग द रफ dirt caked straw nest. Rooting means उसको कुरेदना, and rough गंदा, dirt caked मट्टी से अटा हुआ. उसने हर एक इंच को तलाश किया. तिनकों का जो घोंसला था मट्टी से अटा हुआ गंदा था, उसके दरमियान भी कुरेदा. Where he, his brothers and sister had been hatched. Hatched means अंडों से निकलना. जहाँ वो उसके भाई और बहन अंडों से निकले थे, मतलब उस घोंसले में, ठीक है. He even gnawed at the dried pieces of spotted eggshell. Gnawed means bite, कुतरना, काटना दांतों से. Spotted eggshells. Spotted निशान ज़दा eggshells, अंडों के जो होल थे, अंडों के जो पीसेस थे. उसने निशान ज़दा अंडों के होल के खुश्क टुकड़ों को भी उसने कुरेदा,
दांतों से कुतरा। इट वॉज़ लाइक ईटिंग पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, ये अपने आप का एक हिस्सा खाने जैसा था। ही हैड देन ट्रॉटेड बैक एंड फोर्थ मीन्स आगे पीछे, ट्रॉटेड मीन्स स्लो पेस ऑफ रनिंग, आहिस्ता दौड़ना, या वो आगे पीछे आहिस्ता से दौड़ा। फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर, चट्टान के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ। हिज ग्रे बॉडी द कलर ऑफ द क्लिफ, उसका सुरमई जिस्म, चट्टान का रंग। हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स स्टेपिंग डेंटली मूविंग नाइसली, नज़ाकत के साथ हरकत करते हुए उसकी लंबी टांगें। ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई, वो कुछ तरीका तलाश कर रही थी। मीन्स तरीका, MEAN मीन नहीं है ये, MEANS मीन्स तरीके। कुछ तरीका तलाश करते हुए कि वो अपने पेरेंट्स तक बगैर उड़े हुए पहुंच सके। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड, लेकिन उसके दोनों तरफ चट्टान ख़त्म हो रही थी। इन अ शीर फॉल ऑफ प्रेसिपिस, शीर मीन्स स्ट्रेट एंड प्रेसिपिस मीन्स स्टीप क्लिफ, अमूदी ढलवान। लेकिन उसके दोनों तरफ, चट्टान के दोनों तरफ अमूदी ढलान बिल्कुल सीधी ख़त्म हो रही थी। विद द सी बीनीथ, नीचे समंदर के साथ। एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वाज अ डीप वाइड कैज़म, और उसके वलदैन के दरमियान एक गहरी वसी खाई थी। एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और उसके ऊपर वो कुछ भी नहीं देख सका। द प्रेसिपिस वॉज शीर, वो अमूदी ढलवान सीधी थी। एंड द टॉप ऑफ इट वॉज परहैप्स फार्दर अवे देन द सी बीनीथ हिम, और वो अमूदी ढलवान सीधी थी और उसका ऊपर वाला हिस्सा शायद नीचे मौजूद समंदर से भी ज़्यादा दूर था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg, with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet, and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. He uttered a low cackle. His mother cackled too, and looked over to him. He stepped slowly out to the brink of the ledge. अब यहाँ पे इस बगले की बात हो रही है कि चट्टान के किनारे की तरफ बैर वो आहिस्ता से हरकत की, उसने स्टेप्ड हरकत की, उसने मुड़ा, चला। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग के ऊपर खड़े होते हुए। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, दूसरी टांग परों के नीचे छुपाने के साथ। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद की। दैन दी अदर, तब दूसरी की। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, प्रिटेंडिंग मीन्स दिखावा किया, और तब उसने सोने का दिखावा किया। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने उसका नोटिस ना लिया, मतलब उसकी परवाह ना की, उसकी तरफ ना देखा। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing. Dozing means sleeping lightly, ऊँघना, झपकी लेना।
उसने अपने दोनों भाई और अपनी बहन को उस उभरी हुई सीता के ऊपर ऊँघते हुए देखा। वाइल देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, जबकि उनके सर उनकी गर्दनों में छुपे हुए थे। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसका बाप अपनी सफ़ेद कमर पर अपने परों को संवार रहा था। प्रीनिंग मीन्स संवारना। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन दी प्लेटाओ। हम्प मीन्स राउंड रेज्ड लैंड। गोल किसी की ज़मीन के ऊपर जो गोल उभरी हुई सतह जो होती है, जिसको हम आमतौर पे डेरी भी कहते हैं, ठीक है, वो एक उभरी हुई सतह के ऊपर एक डेरी के ऊपर, छोटी डेरी के ऊपर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका सफ़ेद सीना बाहर की तरफ निकला हुआ था। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट पीस ऑफ फिश, वो मछली के टुकड़े को चीर रही थी। टोर मीन्स टीयर, चीरना फाड़ना। वो उस मछली के टुकड़े जो कि उसके पाँव के ऊपर पड़ा हुआ था उसको चीर फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। स्क्रैप्ड मीन्स स्क्रब, रगड़ना, खुरचना। और वो अपने बीक मीन्स चोंच को, और वो चट्टान के ऊपर अपनी चोंच के दोनों हिस्सों को रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, खुराक के मंजर ने उसे पागल बना दिया था। बगले के बारे में बात हो रही है, ठीक है। खुराक के मंजर ने उसे पागल बना दिया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, किस कदर वो पसंद करता था खुराक को उस तरीके से चीरना फाड़ना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, बार बार अपनी चोंच को रगड़ना। टू वेट इट, वेट मीन्स शार्पन, तेज़ करने के लिए। ही अटर्ड अ लो कैकल, उसने एक कैकल, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैकल इज़ अ लो साउंड, खिलखिलाहट वाली आवाज़, ठीक है, फ़खरिया खिलखिलाहट, लेकिन यहाँ पे नहीं होगी। उसने एक हल्की आवाज़ निकाली, अटर्ड निकाली, मुँह से निकालना। इज़ मदर कैकल टू, उसकी माँ ने भी आवाज़ निकाली। एंड लुक्ड ओवर एट हिम, और उसकी तरफ देखा। So students, this was our today's lecture. You have to practice the lesson. The remaining lesson will be completed in the next class. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.